Please continue. Uh, yeah. Um, First time when I got diagnosed with cancer in 2007, 27th of April, it shook the entire family of ours, my bachas, my husband. I was laughing because I had to give them courage, but my husband and my kids were in tears, and my mummy, my daddy, everybody was, because it was something heartbreaking for everyone. अरे इसको कैसे हो सकता है? Because from the childhood, I have been very careful with my health, yoga, this, that, and all I used to do. And that time, my elder son was about to give his board exams. So, where he needed his mother more, and it became उल्टा कि उनको मम्मी का ध्यान रखना पड़ा. And then second time, when I got it 2020, 5th November 2020, I got diagnosed. But my treatment started in the month of November due to some tests and all everything. It was it was very difficult feeling because 1st August I lost my husband, and 5th November I got diagnosed with cancer. My both sons, they were unable to accept that because पापा अभी अभी गए थे और अब मम्मी को वो भी 4th स्टेज पे कैंसर फाइंड आउट हुआ है. एंड luckily, first time whoever has done my treatment, whatever doctors we had the file, we immediately contacted them, and my treatment started, uh, I think 6th or 7th January onwards. In this full process, it was almost 18 chemotherapies, the heavy ones, where doctor has told us we cannot assure, we are trying our level best. Rest is all your luck, your destiny. Mm. It was really difficult initially. I thought, wow, it is so good कि I will immediately able to meet my husband up in the heaven. But I think he must have told God कि नहीं, इसको नीचे ही रहने दो, ऊपर मत लेके आओ. मैं बहुत थक गया था इसलिए ऊपर मैं भाग आया. So बच्चों ने बहुत मेहनत किया. Chemo were, all the chemos were very painful because they were very heavy dose. And unfortunately, it was Corona time. No parent of us, my bachas, they allowed near to me because they said कि mama, अगर उनको कोई issue हो गया आने में, तो हम उनको संभालेंगे कि आपको संभालेंगे. And that was correct because there was no other lady in the house except me. So I don't know how people, they started getting connected with me, my meditation group, how it spreaded because मैंने किसी ग्रुप में नहीं डाला था, meditation group में. And they started praying for me, they started making me do meditation because my operation took almost 18 hours, and I had so many pipes around me. For 5-6 months I was totally on bed. So मैं लेटे लेटे ही meditation करती थी. And it was really very difficult time. But yes, my younger son, who's little emotional, he said, Mama, you have to live for me. And then I promised him. Okay, first time I got in 2007 and now I got in 2020. So almost 13 years I survived very happily, very peacefully.
So another 13 years, I will not leave you. I will be there with you. I will be behind you always in your life. And I'm thankful to God. I'm thankful to those divine energies who made it happen. अभी तो 2025 ऑलमोस्ट 26 स्टार्ट होने वाला है, तो 5 साल तो अच्छे से निकाल लिए, बाकी का टाइम भी अच्छे से निकालूंगी. In 2020, I was absolutely a skeleton, no hair, dark because chemotherapy burns your blood. And earlier in 2007, since Rajiv was there, I had more strength to fight with. Second time, it was little difficult. It was very painful also. I was emotionally disturbed, and plus, super say physically also, I got disturbed because of this cancer. But yes, I think uh, डर के आगे ही जीत है. I won that battle strongly. My bachas, they became my support. My in-laws, although they were due to age, they were not close to me, but they used to speak to me for hours and hours on the phone, give me confidence कि नहीं बेटा आप ठीक हो जाओगे, हम लोग प्रे कर रहे हैं सब. एंड सबका प्रे और बच्चों का, स्पेशली बच्चों का हार्ड वर्क जो है वो आज आई एम टॉकिंग टू यू ऑल. और मुझे ज्यादा तो नहीं समझ में आ रहा कि what all I can, but it was a very painful journey. Although I'm into meditation since 96, still I got twice. So then we got it, our genetic test. And unfortunately, this is in our genes from my maternal side. And due to that, I lost my cousin, my first cousin. She also had a cancer. Then my another younger cousin, she also had a cancer. And I mean, now everyone in the family has become very careful because एक बार जब फैमिली में आया और सब बेटियों को ही आया, तो they all are scared. हम लोग we are taking full medical precaution and all. My medicines are still on. But along with that, what gave me more courage is togetherness with the family, my in-laws, my mother's side, my brother, my sister. They all gave me so much of courage. And my meditation. मेरे पास अपने लिए अभी बात करने के लिए इतने वर्ड नहीं होते. इफ यू गिव मी टॉपिक ऑन माय मेडिटेशन आई कैन टॉक फॉर आवर्स एंड आवर्स. सो आई थिंक दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज बिकॉज मैं और ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन से जुड़ती चली गई, मेडिटेशन में घुसती चली गई. एंड टुडे आई एम लिविंग अलोन. माय बोथ द सन्स आर अब्रॉड. वन इज मैरिड नाउ. I live over here with my two fur babies, and I go for tracking, I go for trips, solo trips, and all. I'm doing everything. There is no scar on my body after my cancer because I have seen so many people, their hands are blown up, their legs have problems, and all. But touch wood, there is no scar. Nobody can make out that I have survived cancer. I have won the cancer twice. कैंसर ने भी सोचा होगा कि अरे बाप रे मैंने गलत आदमी को चुन लिया जो मुझे 2 बार वापस जाना पड़ रहा है. In hospital, when we used to go and when we used to come back, my
younger son who was always there with me during my treatment, he used to say, Mama, किसी दुश्मन को भी ये बीमारी नहीं आनी चाहिए. छोटे छोटे बच्चे, 6 6 महीने के बच्चे, आई डोंट नो व्हाट ऑल वी आर गेटिंग, व्हाट काइंड ऑफ chemicals we are eating, what kind of food we are getting now. It is coming in small children also. Hospitals are filled with cancer patients. बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, and it is really painful to see those small bachas with the drips and all, because आपको ट्रीटमेंट के लिए अभी भी डॉक्टर से मिलने के लिए एवरी 6 मंथ्स यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल. तब तो शायद मुझे इतना बुरा नहीं लगता था, घबराहट नहीं होती थी. अब मैं देखती हूँ तो मुझे घबराहट होती है. बाप रे, एवरी 6 मंथ्स में आई गेट रिवाइव्ड माई दोज पेन. मेरा फैमिली का जो प्रेशर था उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर जो प्रेशर हुआ मेरी वजह से. बट यस, एवरीवन स्टूड नेक्स्ट टू मी, everyone helped me. So we all won the battle, not only me, my entire family won this battle. And I'm really thankful to the divine energies, to God. And after my surgery, after my treatment, I was losing out my confidence, uh, because शुरू से when you have a good smile, good body, good face, so अपने आप को सुंदर देखने की आदत पड़ जाती है शीशे में. And when I used to look at the mirror, I used to say, "Oh God, कैसे मैं बाहर आऊंगी इन सब चीजों से?" That was the time where my all the friends, they stood up. They used to take me out for drive. They used to take me out for picnics, for dinners and all. They had started taking me out. They used to come, sit for hours and hours, chat with me, get me out of that trauma which I had because of Rajiv. So all had worked wonderfully for me. Cancer is not only patient's battle, cancer is one which the entire family has to come together to win that. एक आदमी नहीं जीत पाता है, पूरा परिवार आपके लिए उस बीमारी को झेलता भी है, उस दुख को भी देखता है और उसे फील भी करता है. During my treatment, the chemo was so painful कि I could not eat anything. I used to just cry. मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना. तो बच्चे एक एक घंटे में इतना इतना सा क्यूकम्बर या इतना सा टमाटो लेके आते थे, माँ इतना सा खा लो, क्योंकि नहीं खाया जाता था उस टाइम पे. तो सारी चीजें आज सिंस मॉर्निंग जब मैं सोच रही थी कि व्हाट आई हैव टू टेल, व्हाट आई हैव टू स्पीक, तो शायद मैं 4 5 सालों में मेडिटेशन में इतनी बिजी हो गई थी कि सब भूल चुकी थी. वो आज सब रिवाइव हुआ, दोबारा से याद आया what I faced, what my family faced, and how each and every friend of mine, they stood next to me. They given me courage and all. I go for marathon with them, walkathon, not marathon, walkathon with them, and they force me to take. Pratiksha knows my friend very well. She's the one who introduced me to this group also. I don't know how I will be able to meet you all. When do we meet? I don't know that. But yes, I'm thankful to Pratiksha. I'm thankful to Dhavalji. He spoke to me. He made me little calm down. थोड़ी देर पहले भी उनका फोन आया था.
कि नहीं, जो भी है आपका दिल में आप बोलिए, आराम से बोलिए. आफ्टरनून में प्रतीक्षा spoke to me. Although she told me to make it little humorous, but इस टाइम पे मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है ऐसा कि जो मैं बोल पाऊं. आई एम एब्सोल्युटली ब्लैंक. हालांकि बहुत कुछ सोचा था, बहुत कुछ शेयर करना चाह रही थी आप लोगों के साथ. बट यस, आई फील नाउ आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड who won this twice, and I'm 110% sure now I'm not going to get this back till my last breath. That is for sure, because I've got that much of confidence now. खाने पे मैं पहले भी बहुत ध्यान देती थी, अभी भी ध्यान देती हूँ. So my request to you all who all are listening, डाइट एंड एक्सरसाइज पे तो जरूर ध्यान दीजिए. सिर्फ खाना ही हमारी जिंदगी नहीं है. अच्छा खाना, फ्रेंड सर्कल के साथ रहना, वेंचर आउट करना, दिस इज ओनली लाइफ. तो जब तक हमारी जिंदगी है, भरपूर जीजिए, जिए, अच्छे से जिए, पीसफुली जिए, और बिना किसी ग्रजेस के एक दूसरे के साथ जिए, क्योंकि यू नेवर नो कब हमारा स्विच ऑफ हो जाए. आह, मैं मैं इस टाइम पे और ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी. अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, आप लोग सामने से बोलिए तो मैं रिप्लाई कर पाऊंगी. बट एकदम से इतना सारा अब मैं नहीं बोल पाऊंगी. मेरा ट्रीटमेंट हुआ टाटा हॉस्पिटल में. एंड आई मस्ट एडवाइज, इन केस अगर आपकी फैमिली में किसी को कुछ इशू है, कोई प्रॉब्लम है किसी को, गॉड फॉरबिड, तो टाटा इज द बेस्ट हॉस्पिटल. डॉक्टर्स आर एक्सट्रीमली गुड. एंड उन्हें करेज दीजिए. जो भी अगर आपकी फैमिली में अगर किसी को डिस्टेंस में भी, डिस्टेंस रिलेटिव को भी है, आपका एक सपोर्ट, एक फोन कॉल कैन चेंज देयर लाइफ. सो कोशिश कीजिए, सबसे ज्यादा से ज्यादा बात कीजिए. अगर कोई बीमार है तो उसको फोन पे तो जरूर बात कीजिए, चाहे आप मिलने मत जाइए, बिकॉज इस टाइम पे आपका इम्यूनिटी बहुत लो हो जाता है. एंड डॉक्टर्स दे एडवाइज टू स्टे अवे फ्रॉम आउटसाइडर्स. एटलीस्ट फोन पे जरूर बात कीजिए, फोन पे उनको करेज दीजिए. दैट इज, गिव देम अ सपोर्ट. और एनीथिंग एल्स अगर कोई पूछना चाहता है तो आई कैन रिप्लाई. यस प्रतीक्षा, टेल मी. Pratiksha, your You are on mute. yeah, and our session will get over in 4 minutes, so we will have to restart. We'll reconnect. So नीलू का क्वेश्चन हम पहले ले लेते हैं. नीलू, आप क्वेश्चन बोल पूछने. क्वेश्चन नहीं, मैं इनको एक बात बताना चाहूंगा कि आप है ना अमेजिंग, मतलब मेरे लिए, मेरे पास वर्ड्स नहीं है. मैं अब तक, मतलब मैं कैंसर को इसमें फाइट करने वाले एक मनीषा कोइराला जी का नाम जानता था कि मनीषा कोइराला जो कैंसर के इसमें से बाहर आए, बट उससे भी आगे आप हो, तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ. मैं आपको एक कहना चाहूंगा कि आप जो बच्चियां जो कैंसर से पीड़ित रहती है, उनके लिए आप अपने इंस्पिरेशनल लेक्चर्स आप कीजिए, उनको आप इंस्पायर कीजिए, क्योंकि एक छोटा सा इंस्पिरेशन भी है ना, आदमी को कहीं Yes, से कहीं लेके जाता है. that is मतलब true. लाइफ उसके लिए बहुत बहुत लाइफ चेंजिंग पॉइंट हो जाते हैं. तो वो अगर आपको सुनेंगे ना, तो वो सुन के ही एकदम अलग इसमें चले जाएंगे. और जो पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव एनर्जी उनको मिलती है ना, खाली वर्ड्स से, आपको और कुछ नहीं करना है. खाली आपको अपनी बातें रखनी है सबके सामने, जो आपने अब तक नहीं रखी है, जिसमें आप बहुत हिचकिचा रहे हो. लगे तो आप वो स्क्रिप्ट बनवा लो, लिखवा लो किसी से, और आप ये करो.
इससे क्या होगा कि आपकी भी एनर्जी बढ़ेगी और That is बहुत true. बच्चे Absolutely. बहुत बच्चे इंस्पायर होंगे आपसे। और मैंने Thank तो you. ये कैंसर की ट्रीटमेंट मेरे घर में भी देखा है मैंने। मेरे फ्रेंड के फादर का भी देखा है। मेरे फ्रेंड के फादर तो मतलब अभी रिसेंट में ही फादर गए, उनका जमाई मतलब उनका मेरे फ्रेंड की एक ही सिस्टर थी, एक सिस्टर एक दोनों मतलब दोनों भाई बहन ही थे। तो उसके उनके पिताजी भी गए और उसके हस्बैंड भी गए कैंसर में। तो 1.5 साल भी मतलब एक एक 1.5 साल भी नहीं निकाला उन्होंने। और और एकदम यंग थे और खुद डॉक्टर थे। मगर वो जो Oh, ट्रीटमेंट और वो सब पेन और उनका बॉडी का वो सब, जैसे आपने बताया ना कि मैं एक स्केलेटन हो गई थी, तो हम्म। वैसा उनकी कंडीशन हो गई थी। और मेरे घर में मेरे फादर थे, मेरे फादर को भी डिटेक्ट हुआ था। बट मेरे फादर ने बहुत ही हिम्मत दिखाई, फादर बहुत अच्छे से आगे लाइफ भी अच्छी निकाली। और मेरे फादर ने अभी हमारे जैनों में संथारा लेते हैं, इच्छा मृत्यु जिसे बोलते हैं ना, तो वो लिया। तो हम लोगों ने कभी मतलब उसका गम नहीं किया, कभी कोई रोया नहीं हमारी फैमिली में। और हमने उनको अच्छे से मतलब पालकी में बिठा के उनको विदा किया था। oh. तो ऐसे इंस्पायर होना चाहिए, तो प्राउड फील होता है कि हमारे फादर नहीं, ऐसे वर्क वाले ऐसे। I'll think तो on this आप भी, point. हाँ आप भी Yeah, कीजिए। because आपको भी प्राउड फील होगा और आपके बच्चों को, फैमिली को भी प्राउड फील होगा कि मतलब ठीक है, अभी आना जाना तो लगा ही रहने वाला है, आए हैं तो जाना भी है। तो जाते हुए कुछ ऐसा करके जाए ना कि लोग याद रखें, मेमोरीज में Tata, रखें। these kind of lectures, I will हाँ, speak to them definitely. I have to go यस, shortly for my checkup. I'll speak to doctor. ओके, कुछ कीजिए। और बच्चों को Yes, बोलना sure. कि अभी मतलब आगे इनकेस कुछ भी होता है तो कभी रोना मत, हंस के विदा करना नहीं, मुझे। लड़के हैं, लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़की थोड़ी सी वीक हो नहीं जाती है, ऐसे नहीं है, लड़के ऐसे स्ट्रांग नहीं है, होते ऐसे नहीं है, लड़के हैं. स्ट्रांग होते हैं, लड़के दिखाते नहीं है। लड़के भी Yeah. रोते हैं मगर वो दिखाते नहीं है, पेन उनका दिखाते। Hmm. उनको मतलब पहले से उनको राइट ही नहीं दिया है कि आपका पेन आप शो करो, मतलब कुदरत नहीं दिया है वो। तो नहीं नहीं, अभी हम नहीं, सबको I राइट can देते हैं। understand. हाँ, I can understand. जब मेरा 18 आवर्स का ऑपरेशन चल रहा था तो मेरा बेटे को उसी हफ्ते में बीपी हाई हो गया था. He was just 21 years old. He said, ओ, मम्मा वो ओके, 18 आवर्स मैंने कैसे बाहर निकाले हैं वो मुझे मालूम है. राइट, So cancer is not only for a single person. Cancer is for entire family. एंटायर फैमिली। Name itself